Hello students, this is the another video of class 8 science, and as you know we are studying the chapter 1 crop production and management, and in this chapter we are talking about the agricultural practices. So as you know, the agricultural practices are the steps that are taken by the farmer to grow the crops for getting good yield. So there are various steps in are included in the agricultural practices like soil preparation, selection and sowing of seeds, manuring or adding fertilizer, irrigation, weeding, harvesting, threshing, winnowing and storage. So some steps we had discussed in the earlier videos, and today we are going to study about the weeding. So we will see what is weeding and how do we do this. So let's see. So what is weeding and what are the techniques that we do in weeding? So the weeding is the process of removing weeds from the field is known as weeding. Okay. Process of removing weed from the field is known as weeding. And so इसमें हम क्या करते हैं, हम weeds को remove करते हैं from the field and इसी process को हम weeding बोलते हैं. But weed क्या है? Now the question is what is weed? So weeds are the unwanted plants growing along with the cultivated plants on their own are known as weeds. वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स के साथ खुद ब खुद उग जाते हैं खेतों में, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. दे आर अनवांटेड. ओके, एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर crop, so they need to remove from the field. Why are they not good for our crop? Because they are the competitors of our cultivated plants. वो क्या करते हैं? Because they grow with our crops in the field, so they compete for the sunlight, air, nutrients and water. They compete for our cultivated with our cultivated crops, and they use sunlight, air and nutrients and water, so they cause the reduction in the growth of cultivated crops. And some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. खेतों में हमारे क्रॉप्स के साथ उगाते हैं, तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें भी ये इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि जब हम खेतों में फसल को काटेंगे तो उसके साथ साथ ये पौधे भी उसमें आ जाएंगे, और इफ़ दे आर पॉइजनस तो वो हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे लिए क्या होंगे? दे विल बी हार्मफुल. In comparison to cultivated crops, the seeds of wheat germinate easily and flower easily. It is saying that जो हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके कंपैरिजन में जो वीड्स होते हैं बहुत ईजिली, बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं और बहुत आसानी से वो फ्लावर मतलब अपने सीड्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं. एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. They grow by their own and they produce large number of seeds for their balancing their population, and they also spread diseases to the cultivated plants as they become host to many insect and microorganism. ये बीमारियां भी फैला सकते हैं पौधों में, क्योंकि इनके ये जो होते हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होस्ट होते हैं. तो जब भी आपके खेतों में कोई वीड होगा और वो होस्ट होगा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्रॉप्स को भी वो क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे. सो दे आर वेरी हार्मफुल, एंड इसीलिए वी नीड टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप्स. इसीलिए हमको वीडिंग करनी पड़ती है, हमें वीड्स को फील्ड से टाइम टू टाइम निकालना होता है. द बेस्ट टाइम for removal of weed is before they produce flower and seed. Best time क्या होता है वीडिंग का? वीड्स की फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन से पहले हमें वीड को रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार फ्लावरिंग करेंगे और सीड प्रोड्यूस करेंगे तो दे विल इंक्रीज देयर नंबर्स. Now
What are the methods that we use to get rid of the weed? वीडिंग के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं? तो देर आर सम मेथड्स दैट वी विल टॉक अबाउट. द वीडिंग इज़ डन बाय आइदर पुलिंग आउट द वीड विद हैंड्स और बाय यूजिंग ह्यू और हैरो और सीड ड्रिल. ठीक है, आपने देखा होगा कि हम अपने हाथों से ही उसको उखाड़ कर निकालते हैं. वी पुल इट आउट फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द सॉइल, एंड समटाइम्स वी यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ह्यू और हैरो और सीड ड्रिल. यू कैन सी द picture of harrow that we use by tractor to remove the weed from the field, and it can be removed using trowel. trowel का यूज़ करके भी हम weeding कर सकते हैं, weeds को खेतों से निकाल सकते हैं. एंड काफ़ी ईजी और कॉमन मेथड है एक, द यूज़ ऑफ केमिकल का भी हम यूज़ करते हैं. और ऐसे केमिकल जिसका यूज़ हम वीडिंग के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स. द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल द वीड, दे आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स. एंड बहुत ही कॉमन सा वीडीसाइड है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड. इस केमिकल का, इस वीडीसाइड का हम यूज़ करते हैं टू किल द वीड्स. एंड दीज केमिकल किल ओनली द वीड एंड नॉट द कल्टिवेटेड क्रॉप्स. इसकी खासियत क्या होती है कि ये केमिकल जो होते हैं सिर्फ वीड्स को ही किल करते हैं, हमारे कल्टिवेटेड क्रॉप्स को, हमारी जो हमने लगाया हुआ है खेतों में, हमारी जो क्रॉप होती है वो उसको हार्म नहीं करते हैं. दे आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. कब हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स को स्प्रे करते हैं ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड के फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले ही हम खेतों में इस केमिकल को स्प्रे कर देते हैं, तो जिससे वीडीसाइड्स क्या होते हैं, मर जाते हैं. बट क्योंकि ये केमिकल वीडीसाइड क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो इट मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. तो ये हमारे किसानों के हेल्थ को भी हैम्पर कर सकते हैं. इसीलिए ड्यूरिंग स्प्रे करते समय हमें क्या करना चाहिए, दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. हमें प्रॉपर तरीके से स्प्रे करना चाहिए. एंड ड्यूरिंग द स्प्रेइंग हमें अपने नोज़ एंड माउथ को मास्क या फिर पीस ऑफ क्लॉथ से ढक लेना चाहिए. वी शुड टेक द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द स्प्रेइंग द weedicide because weedicides are the poisonous chemicals, so they can harm to our health also. Some insects that do not cause harm to crops can be made to breed and grow, then they destroy the weeds having the crop safe. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके होस्ट जो होते हैं वो वीड्स होते हैं, और वो इंसेक्ट जो है वो हमारे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वीड को ही खाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं. तो ऐसे इंसेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम पाल सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं और फिर उसको खेतों में छोड़ सकते हैं. तो वो इंसेक्ट क्या करेंगे, दे विल eat all the weeds in the field and they will not cause harm to our crops. Now we will talk about the protection from pest and diseases. ठीक है, हमारे खेतों में बीमारियां भी लग जाती हैं पौधों में, तो उनके बारे में हम जानेंगे. Organisms that cause diseases to the plants are called pathogen. पौधों में बीमारियां फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म हमारे क्रॉप्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय करते हैं उन्हें हम पेस्ट कहते हैं. ओके, द मेथड यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पैथोजन एंड पेस्ट आर. What are the methods that we use to protect our crop from pathogen and pest? क्योंकि ये पैथोजन बीमारियाँ फैलाते हैं तो हमारी क्रॉप जो है वो हमारी क्रॉप्स को हार्म पहुँचाते हैं और फिर हमें ईल्ड नहीं मिलता है, प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है. और ये जो पेस्ट होते हैं वो हमारी क्रॉप्स को ही पूरा डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देते हैं, उससे भी हमारे प्रोडक्शन में नुकसान होता है. तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, वी स्प्रे द केमिकल्स एट रेगुलर इंटरवल. हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं. सच केमिकल्स आर नोन एज पेस्टिसाइड. पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड. कुछ कॉमन पेस्टिसाइड आपने सुना होगा नाम, जैसे DDT, BSC एंड मैलाथियन. DDT तो बैन हो गया, अब नहीं यूज़ होता है, बट मैलाथियन एंड BSC ये सब बहुत ही कॉमन
पेस्टिसाइड्स थे जिसको हम पहले यूज़ करते थे टू किल द पेस्ट, एंड दे आर आइदर स्प्रेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इसको हम अपने हाथों से भी स्प्रे कर सकते हैं, हैंड ऑपरेटेड मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दिस पर्सन इज़ हैविंग अ स्प्रेयर एंड बाय स्प्रेयर इट इज़ स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड। और इसके लिए हम लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी यूज़ करते हैं, एंड टू लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट वे में ज़्यादा एरिया को कवर करके स्प्रे कर सकते हैं पेस्टिसाइड को। नाउ द पेस्टिसाइड यूज्ड आर वेरी इफ़ेक्टिव। पेस्टिसाइड्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। येट केयर मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग देम। लेकिन ये इफ़ेक्टिव तो है, बट उसके इस्तेमाल के वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन एंड केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड इज़ वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। अगर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज इट इरिटेट द स्किन, कॉज गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये इट कॉजेज़ हेल्थ हज़ार्ड, ये हमारे हेल्थ के लिए खतरा होता है, एंड हमारे एनवायरनमेंट को भी ये पोल्यूट करता है। एट द टाइम ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ पेस्टिसाइड वीडिसाइड यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी पॉइजनस, दे कैन कॉज द हेल्थ हज़ार्ड टू अस एंड दे कैन कॉज हज़ार्ड टू आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। So this is all about the weeding and protection of the crop, and in the next video we'll talk about the next agricultural practice, that is harvesting, threshing and winnowing. And till then, keep learning. Thank you.